Jai Siya Ram everyone, welcome back to my channel Composite School Dhimarpura. So friends, today video is going to totally different. Why? Because in this video I'm not going to tell you any motivational story. I'm not going to tell you any motivational things. Okay, in this video I'm going to tell you how to speak in English. That's why it's totally different, because 2 or 3 days before a student asked me, ma'am, I wanted to speak in English, but I don't know, please tell me some tips and some tricks, some methods which helps me to speak in English. So I thought that this question is asked from me, so this is my responsibility to give them answer. So I thought that why am I not creating a video on this topic, because this is a very common problem faced by every student. Okay, and no one can deny it that English is not a important place. Okay, nowadays it is it plays an important role everywhere. Okay, you do in work in private sector, in some government job, it's very important to know how to speak in English. Okay, not fluently, but know how to speak in English. Some question answer, you are capable to give them some question and answer, and raise some question and give them the answer. So it's very important. So the question asked by from me by a student, so that's why I am creating a video on this topic. Okay, so whatever I'm going to in this video is totally depend on my experience, what the tips and tricks and methods I applied on my journey. And I thought that it helped me a lot, and it will also help you if you follow it very carefully. Okay, so watch the video right till then, because this video is going to very helpful, very useful. Okay, and don't skip the video. If you skip the video, that means you are going to miss the opportunity that I am going to share with you in this video. So watch the video right till then. And if you are new, if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel, because this things gives me boost to create more and more valuable content for you every day. Okay, so without any further delay, let's get into the topic. So my today topic is that how to speak in English. Okay, so first I would like to say you take English as a language, नॉट मोर देन एनफ. ओके, इसको आप एक भाषा के रूप में लो. ठीक, फर्स्ट यू नीड टू, आपको ज़रूरत है ये बात में कि आपको इंग्लिश क्यों आनी चाहिए. व्हाट डू यू नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज, क्यों चाहिए? नॉलेज के लिए, स्किल के लिए, कि एटीट्यूड के लिए? जस्ट इफ यू, सो आई एम गोइंग टू शेयर यू इन how to speak in English. I'm not going to give you any knowledge and to gain any knowledge. Okay, because everyone studied in English from class 3rd as a subject. So in this video I'm going to share you how to speak in English. Okay, it's a skill. Okay, once you are perfect in this skill, then you are capable to raise a question in English and give them the answer. Okay, so this is a very easy thing, but you should promise yourself that yes, you are going to speak in English no matter what. If people laugh at you, if people fun of you, so don't worry about this. Whatever I'm going to share with you in this video, please hear me out for few next 15 or 10 minutes very carefully. Okay, so first you take a language as a language. फर्स्ट आप अपने आप में शर्म मत करिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती.
इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आप तमिलनाडु में पैदा नहीं हुए हैं तो आप तमिल नहीं बोल पाते हो, आप केरल में पैदा नहीं हुए तो आप मलयालम नहीं बोल पाते हो. इट इज़ जस्ट लाइक you were not born in English country, that's why you are not speaking English. सिंपल सी चीज़ है, इसको इतना ज़्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है that you are not speaking English. No, it's not good for you. First you give you positive affirmation. Yes, you can do it. If you want to learn this language, then it's not impossible for you. Okay, so first you give yourself a positive affirmation. Yes, you can do it. Okay, after that you take a challenge. Okay, first you need to take a 100-day challenge. Okay, minimum 100 days. Why? Because देखिए, जब आप किसी गोल को लेते हो ना, तो आप उसमें अपना पूरा फोकस उसमें करते हो. इवन आप चाहे बीमार ही क्यों ना, आपको कितना भी इमरजेंसी का कोई काम ना आ जाए, लेकिन जब तक आप उसको कहते हैं ना कि किसी काम को करने के पहले जब तक आप उसको संकल्प नहीं लेते हो, संकल्प लेने से क्या होता है, आपका जो मन दिमाग सब कुछ उसको एनी हाउ किसी भी तरह आपको उस काम को करना है. सो व्हाट you have to do to take a 100-day challenge. Yes, the next 100 days you will speak in English, only in English. Okay, so take a 100-day challenge. Okay, and be honest. Okay, आपको करना है तो आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर करने नहीं आ रहा है. क्यों तुमने आज याद किया, क्यों तुमने ये आज प्रैक्टिस की, या तुमने ये किया, नहीं, कोई आपके ऊपर सुपरवाइजर नहीं है. यू आर योर बॉस. ओके, आप अपने खुद के मास्टर हो, बिकॉज इट्स योर चैलेंज, इट्स योर पैशन, इट्स योर ईगर. आप चाहते हो इंग्लिश में बात करने के लिए, सो योर फादर मदर एंड आपके सिस्टर ब्रदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए. ठीक है, फर्स्ट टेक इट्स योर चैलेंज. सो टेक a 100-day चैलेंज. 100 days आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करनी है. आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर जाकर पैसा खर्च करने के लिए. देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज, नो वन कैन डिनाई इट दैट एंड दे हैव नो एंड्रॉयड फोन. ओके, यूज इट वाइजली मीन्स देयर आर सो मैनी कंटेंट एंड एनी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, बट यू हैव अ ईगर, देन use it wisely. Okay, just go and type on YouTube, on Google, how to learn this language. Okay, so I also gave you some tips. You can install GPT. Okay, and GPT एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसको आप सर्च करेंगे हाउ टू डू कन्वर्सेशन विथ 2 people, तो 2 पूरा का पूरा लिख के आएगा. आपको क्या करना है, आपको रीड करना, उसको इमिटेट करना, उसको साउंडली बोलना है. So this is a very helpful for you for learning this language. Okay, मैंने आपको 100 days का चैलेंज दिया. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट. एंड बिलीव मी, आफ्टर 100 days you will feel more confident. You will feel that now English is not a problem for you. You feel that's like fun. Okay, और इसको आप एज ए स्ट्रेस के रूप में मत लो कि नहीं मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं. ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज देन बी अ चाइल्ड मीन्स एक छोटा सा बच्चा क्या कहता है. आपसे बस एक चीज़ क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग. आपने अपनी मदर टंग कैसे लर्न की. कि आप किसी स्कूल में जाते थे, कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे. No, you were not going any school, you were not going any institute, but instead you speak in your mother tongue with very confidently. But how it is possible? It is possible because your mother, your father, your elder brother, your elder sister always speak अंग्रेजी आपकी मदर टंग में बात करते थे. सो आपने क्या किया, आपने जस्ट उनको हियर्ड किया एंड देन कॉपीड देम. जस्ट यू हियर्ड एंड कॉपीड देम, एंड दैट्स व्हाई when you are the age of 3 or 4 you were capable to express your feelings, express your idea in your mother tongue without going any institute, without going any school. Okay, so
बीइंग अ चाइल्ड, आप एक बच्चे जैसे बन जाते। लर्न करो इस इंग्लिश को एज ए, जैसे आपने अपनी मदर टंग को लर्न किया। आपने अपनी मदर टंग को कैसे लर्न कर लिया, कैसे सीख लिया? आप किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, आपने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, बट जस्ट यू स्पीक इन योर मदर टंग। हाउ इट इज डू? जस्ट लर्न इंग्लिश एज अ मदर टंग। ओके, क्या करना है आपको? आपको जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको सुनना है। सुनना है, कैसे सुनना है? आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास आप बहुत से ऐसे सीरीज आती हैं, इंग्लिश सीरीज आती हैं, जिससे आप आसानी से उसको उसको एक सेंटेंस और उसको पोज करिए, उसको इमिटेट करिए। ठीक, मेक योर सराउंडिंग्स इन इंग्लिश। अपनी सराउंडिंग्स को इंग्लिश जैसी बनाइए। ओके, वेन एवर आप कहीं पे बाहर कहीं पे जाओ, आपको जो कुछ भी लिखा दिख रहा, जस्ट वॉच एंड स्पीक इट आउट। ओके, सो it help you a lot. So learn this language as a child. आपको उस समय छोटा बच्चा क्या करता था? सीखता था, बहुत सी गलतियां करता था। ओके, सो उस समय क्या था? उसके अंदर ईगो नहीं था, उसके अंदर ये नहीं था कि अगर मैं गलती करूं तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बट नाउ इट इज, इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव डेवलप्ड ईगो। हमारे अंदर ईगो डेवलप हो गया है। ऑल्सो व्हेन वी डू मिस्टेक्स for learning this language, so we feel that if what if I made mistakes, so people laugh at me, people make a fun of me. So we always think that, and that's why we are not learning this language. That's why we are thinking that it's not benefit for learning this language. Then why am I so worrying for learning this language? So this is the main reason. Okay, so make your surroundings for good English. Okay, and my next tip is that stop using words and start using sentences. How is it? Okay, देखिए, आप अगर वर्ड्स को लर्न करने में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी लाख्स। ओके, लाखों में वर्ड्स हैं, आप कब तक इनको लर्न करने सकते हो? सो यू नीड टू लर्न एज अ सेंटेंस सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस। ओके, आपने देखा होगा कि एक मैकेनिक क्या होता है, किसी गाड़ी का कलपुर्जा पूरा अच्छे से बनाता है, उसको फिर वापस जोड़ देता है एक ड्राइवर के अपेक्षा। ड्राइवर नहीं जानता है। अ मैकेनिक नोज एवरीथिंग इन इंग्लिश, द नट्स एंड बोल्ट्स, एंड ही ब्रेक आउट एंड अगेन ही पुट इट अगेन। ओके, बट the driver don't do that. What? Who drive the vehicles well? Driver. A driver drive the vehicles well, better than the mechanic. So we all know everything English. We all know everything in English, nuts and bolts, all everything English, but we don't know how to drive it, how to speak out. So अप्रोच हमें कौन सी बनानी है? ड्राइवर की अप्रोच बनानी है, ना कि मैकेनिक अप्रोच बनानी है। ओके, सो दिस इज माय टिप्स। ओके, माय नेक्स्ट टिप इज दैट बीइंग सराउंडिंग्स योरसेल्फ, स्टे मोटिवेटेड। आपने 1-2 दिन स्टे मोटिवेटेड, आपने मोटिवेशन बहुत आया, हाँ मुझे ये चीज़ लर्न करनी, ये करना वो करना। 2-3 दिन के बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और ये होता है, किसी भी चीज़ को आप लर्न करने जाते हो ना, शुरुआत में बहुत अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हो, यस मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम जा रही हूँ। और कुछ दिनों के बाद आपका मोटिवेशन जैसे ही डाउन होता है तो आप उसको क्या कर सकते हो? गिव अप कर देते हो। बट यू डोंट डू दैट। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है। 100 डे चैलेंज लेना है, आपको लेना है, उसको किसी भी तरह पूरा करना है। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो ऑल द टिप्स विच वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो, बिलीव मी, if you will follow, then you will come and give me a good news that ma'am, my English is improving now. So friends, it's a very good tips and tricks, believe me. Okay, आपको क्या करना है एक्चुअली? ये देखिए, हम क्या है, इस हाथ से बहुत अच्छे से इंग्लिश लिखते हैं। एवरीवन द राइट हैंड कैन डोमिनेट। ओके, इससे हम बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकते हैं। ओके, हमें इससे कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। सो इस हैंड से क्या करते हैं? इस हैंड से हम लिखना चाहते हैं, लिख तो लेंगे, बट वैसी फ्लुएंसी नहीं आएगी जैसे हम इस हाथ से कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि इस साल से हमने प्रैक्टिस की है, इस साल से हमने प्रैक्टिस नहीं की है लिखने की। दैट्स वाई हम लोग इतना परफेक्ट नहीं है इससे लिखने के लिए। सेम एज द रूल इसी इसमें लगाइए आप लर्निंग में। ओके आपने प्रैक्टिस नहीं की है स्पीकिंग की, दैट्स वाई यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस वॉट एवर यू नो। फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए आपको इंग्लिश बोलनी है। ओके गलत सही से मतलब नहीं रखना है। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 month, you feel that now you are perfect in English, then now you focus on vocabulary, sentences, structures, but first you need to speak out whatever in your mind, just speak out. Okay, so friends, I hope you like my video, because जो भी टिप्स और जो भी ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं वो बहुत ही आपके ऊपर, अगर आप उसको अपनी फ्लुएंसी पर अप्लाई करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक माई वीडियो, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय सिया राम।